Okay. Namaste, everybody. I'm live. We had some challenge with the link which we had sent. So we had to change the link, and I am on a different link altogether. Hopefully, people will switch over and they will come to this link. Okay. This is evening YouTube live, and we're doing two live sessions every week. One is on a Saturday morning, and that is on life-based subject which I take called Happy Minds. And last few weeks we started an evening session which is in the middle of the week, maybe a Wednesday or a Thursday. We are yet to finalize a day which we can fix on, because just waiting for the response as to which day would be better. So I think it'll be a Wednesday, most probably a Wednesday. But yesterday was the Shera, so we thought of taking it today. So the evening YouTube live would be more or less on the business side, for entrepreneurs, for working professionals, or people who want some clarity on the business side. So today's session is just that. Namaste, who those who are just joining in. Just want to share one more time. We had some challenge with the link which people had, and that's why people have not been able to log in with the earlier link. So anyways, this is live, and people can anytime, they can see the recording, and it's going to be there on YouTube. So like I was sharing, कि ये जो live है, this is on the business side, and a lot of entrepreneurs, a lot of working professionals, they would come for Happy Minds, or Happy Minds में they would Happy Minds is a session which I take on Saturday morning. तो उसमें काफी questions आते थे for on the business side of life, and जब मैं वो उन questions का answer देने की मैं कोशिश करता था, तो we would have people who have come for the life lessons here, and then you have the business lessons there. So we thought, why not take a separate session purely on the business side, and that's why this live in the evening of a weekday is there. Well, today's subject is leadership. I spoke on this subject a few weeks back. I just want to build up on the subject, and as in when you see you're joining in and you have a question, you can ask me that question, and want you to connect with the concept of leadership जो मैंने समझा है पिछले कई सालों में, dealing and talking and meeting leaders across different industries. जो मेरी समझ build हुई है, उसके कुछ aspects मैं आपके सामने रखूंगा, and hope you connect, and hope you align with what I have to share. तो पहला एक कॉन्सेप्ट है कि लीडरशिप क्या है. इसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन है. दूसरा, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें भी लोगों की जरा समझ में की पकड़ में जरा कमी है, और उस कमी की वजह से वी डोंट डेवलप ऑन द लीडरशिप साइड. तो अक्सर लोगों को लगता है कि लीडरशिप जो है ना, ये आ जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये ऐसा होता नहीं. बाय चांस जो है ना, कभी लीडरशिप आती नहीं है. लीडरशिप इज अ थॉट ऑफ एक्टिविटी. लीडरशिप इज अ वेरी वेल रेड एंड वेल अंडरस्टूड एक्टिविटी. तो जब आप इसका इम्पैक्ट समझेंगे कि लीडरशिप का इम्पैक्ट क्या है, लीडरशिप क्या हमसे करवा सकता है, या फिर एब्सेंस ऑफ लीडरशिप हमसे क्या नुकसान करवा सकता है, तो शायद कहीं ना कहीं इसकी अहमियत आपके मन में जाएगी, और उस अहमियत की वजह से शायद आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स करोगे. ये नेचुरली या बाय द वे या अनजाने में लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर नहीं आती है. इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत क्यों करेंगे जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर होती है. तो जस्ट टू शेयर विद यू द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए which you think is a class organization, which you think has made an impact in the world, which you think has brought out products which are benefiting the world, which you think as a role model organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके मन में आती है, जो बातें मैंने करी हैं उनसे लिंक होती हुई, कि जो आपके जहन में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एकदम आप सोचते हैं और आपके मन में आ जाती है. तो जब आप सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आपके मन में वो आती है, तो उसके साथ साथ जो है ये बात भी आपको समझ में आएगी कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को उस लेवल पे पहुंचाने की जो बात थी, वो एक लीडरशिप की थी. अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस में वीक लीडरशिप होती या पुअर लीडरशिप होती, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचते. दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप.
और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कभी उनका प्रोडक्ट अच्छा था या उन ऑर्गेनाइजेशंस की ना दे हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लेकिन उसके बाद भी वो स्ट्रेटेजिक थॉटफुल स्ट्रेटजीज थी उनकी, उनके टैक्टिकल एग्जीक्यूशन प्लान्स थे, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत थी, लेकिन उसके बाद भी दे कुड नॉट रीच अ सर्टेन लेवल. इट वाज प्योरली बिकॉज समवेयर in this journey of theirs as an organization, they lacked great leadership. That's the impact of leadership. और I'm talking from the perspective of कि लीडर्स जो है, अगर अपना रोल समझ पाए और लीडर्स अपने रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाए, तो वो बहुत कुछ क्रिएट करने के लायक बन जाते हैं. एंड मोर सो फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारी हायरकी नहीं होती है. Leader is directly connected to the lowest possible level in the organization. क्योंकि ज्यादा लेवल्स नहीं होते, 2 या 3 लेवल्स होते हैं, मैक्सिमम 3 लेवल होते हैं. नॉर्मली 2 लेवल्स में एक लीडरशिप होती है. तो लीडरशिप का रोज का इम्पैक्ट होता है छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में. जब ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं तो काफी लेयर्स हो जाती हैं, तो जो टॉप लेवल का लीडर होता है उसका डेली इम्पैक्ट नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन पे. तो इसलिए छोटी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल एंड मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहां पर लीडरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और अगर वो अच्छा तरह से रोल प्ले हो गया तो वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन फिर छोटी नहीं रहती, फिर इम्पैक्टफुल बन जाती है, वर्दी बन जाती है. दैट्स द पावर ऑफ लीडरशिप. Whether it be organizations, whether it be a sport, whether it be any non business organization, जहां पर लोग हैं वहां पर लीडरशिप लगेगी. जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, वहां एक अच्छी लीडरशिप लगेगी. सो जस्ट वांटेड टू बिल्ड अप दिस सब्जेक्ट ऑफ लीडरशिप फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि जब तक इसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी ना, जब तक इसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, तो हम इसको पिकअप भी नहीं करेंगे. हम उसी चीज को उठाते हैं, उसी चीज को हम दिल के करीब रखते हैं जब हमें उसकी वैल्यू मालूम होती है. लाइक फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, a piece of iron, a piece of gold will have the same value. कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि गोल्ड और एक एक आयरन के पीस में क्या फर्क है. उसके लिए दोनों वो एक एक मेटल का पीस है, तो वो दोनों को शायद सेम ट्रीटमेंट देगा. वो उन्हीं दोनों को उसी लापरवाही से हैंडल करेगा या उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ हैंडल करेगा. बट अ ग्रोन अप नोज द डिफरेंस बिटवीन अ गोल्ड मेटल एंड आयरन मेटल. उसको मालूम है कि दोनों में फर्क है, और उस फर्क की वजह से वो जो उसके मन में वैल्यू क्रिएट होती है, ही इज एबल टू गिव द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू व्हिच ही होल्ड्स. सो अगर आपके मन में लीडरशिप की वैल्यू है, तो आप उसको संभल के आप उसके बारे में समझोगे. अगर आपके मन में लीडरशिप की वैल्यू है, तो आप उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए एफर्ट डालोगे. सो दैट्स ऑन द साइड ऑफ वैल्यू ऑफ लीडरशिप. सेकेंड इज कि ये लीडरशिप है क्या. सो लीडरशिप जो है, अगर मैं आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से बताऊं, लीडरशिप एक एक कला है, इट्स एन आर्ट. और वो आर्ट क्या करवाती है एक लीडर से? इट मेक्स पीपल डू विद अ कनेक्ट, इट मेक्स पीपल डू सर्टेन टास्क. लीडरशिप एक कला है जो लोगों से काम करवाती है, उनका दिल लगवा के, फॉर समथिंग विच मस्ट बी डन. तो लीडरशिप एक कला है, वो लोगों से काम करवाती है वो करने के लिए जो होना चाहिए. I'll repeat again. It's an art which makes people do what must be done. और इसको हल्का सा और ऐड इन करूं कि लीडरशिप इज एन आर्ट which makes people want to do what must be done. It makes people do, it makes people want to do what must be done. तो लोगों के अंदर चाहत पैदा करती है लीडरशिप, वो काम करने के लिए जो काम होने चाहिए. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल के काम है. तो चाहे रिसेप्शनिस्ट हो तो उसके अलग काम है, सेल्स का मैनेजर है उसके अलग काम है, फाइनेंस का अलग काम है, सबके अलग अलग काम है. तो उनके लीडर्स की काबिलियत होनी चाहिए कि अपने नीचे के लोगों के अंदर वो चाहत पैदा करें उन कामों के लिए जो काम होने चाहिए. और ये चाहत वर्ड जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है. लीडरशिप शुड बी एबल टू मेक पीपल वांट टू डू. जबरदस्ती नहीं कि अपनी ताकत की आप पावर यूज करते हो, अपने अपने पोजीशन की पावर आप यूज करते हो, आप अपने डर की आप ताकत यूज करते हो, या आप धमकाने की ताकत यूज करते हो, एंड देन यू मेक पीपल डू सर्टेन थिंग्स ना. लीडरशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल वांट टू डू थिंग्स व्हिच मस्ट बी डन. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कहा हमें जो होने चाहिए, इट्स अ मस्ट. बट उस मस्ट के पीछे क्या लोगों की चाहत है, दैट इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड. I mean,
Good to see all of you there in this live session. You're there with me on this very understanding of leadership. लीडरशिप करती क्या है? तो लीडरशिप जो है वो एक चाहत पैदा करती है अपने फॉलोअर्स के अंदर वो काम करने के लिए जो काम होने चाहिए। और जब ये चाहत पैदा नहीं होती ना, तो फिर लीडर अपनी पोजीशन की ताकत यूज करता है। और जब ताकत यूज करता है तो फिर जब तक वो है तब तक काम होता है, जब वो नहीं होता तो काम नहीं होता, बिकॉज उसने चाहत पैदा नहीं करी। तो आपको अगर टेस्ट करना है ना लीडरशिप का, तो आप देखिए कि अगर आपके पास वो पावर ना हो जो आपके आपके पास है, अगर वो पावर ना हो, क्या फिर भी लोग आपके लिए वो काम करेंगे जो अभी वो कर रहे हैं? इट्स अ टेस्ट ऑफ लीडरशिप। सो आई मेड यू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड, व्हाट इज लीडरशिप इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। नाउ लेट मी मूव ऑन टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। वन इज जो फंक्शन है लीडरशिप का, कि लीडरशिप का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और दूसरा ये लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एक विजन देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस विजन की ओर जाने के लिए लोगों को इंस्पायर करता है। दैट्स वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लीडर। ही इज एबल टू क्रिएट, ही इज एबल टू गिव अ वेरी कंपेलिंग विजन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप लीडर हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एक कोई वर्टिकल हैंडल कर रहे हैं, सो यू गॉट टू आस्क योरसेल्फ, हैव आई बीन एबल टू गिव अ वेरी कंपेलिंग विजन। कोई छोटा मोटा नहीं, कोई ऐसा ऑर्डिनरी विजन नहीं। कंपेलिंग मतलब उसको देख के, उस विजन को देख के, उस विजन को सुन के द टीम इज इंस्पायर्ड। द टीम सेज वाओ, दिस इज वर्थ मेकिंग एन एफर्ट फॉर। दैट इज द पावर ऑफ अ कंपेलिंग विजन। तो क्या आप ऐसा कंपेलिंग विजन दे पा रहे हो अपने अपने फॉलोअर्स को? तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Second part of responsibility is, are you able to inspire the team through by sharing that vision, by making it simple, by making them own that vision? क्या आप उनको ओनरशिप दे पा रहे हो विजन की, कि ये विजन मेरा नहीं है, ये विजन हम सबका है? क्या ऐसी एक फीलिंग ला पा रहे हो आप अंदर कि यार ये देश को साफ रखना सिर्फ मेरा विजन नहीं है, ये हम सबका है? क्या ये मेक इन इंडिया जो हम कर रहे हैं ये मेरा विजन नहीं है, ये हम सबका विजन होना चाहिए कि हमारे देश में कुछ बनना चाहिए? तो जब आप ऐसा एक विजन क्रिएट करते हो जो आपका भी है, लेकिन आप जो है वो अपने फॉलोअर्स को ओन करवा देते हो, देन इट इज कॉल्ड अ शेयर्ड विजन। दैट इज द जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर। और अक्सर आप देखो कि लीडरशिप यही फेल हो जाती है, क्योंकि लीडर फिर क्या करता है, हाँकता है ना, जब वो ओन नहीं करा पाता अपनी टीम को वो विजन, तो फिर उनको हाँकता है, उनको फोर्स करता है, उनको पुश करता है। So again, I'm sharing with you this very thought. You have to ask yourself, have I been able to make my team own that vision? या फिर मैं अकेला ही खींच रहा हूं सबको, या मैं अकेले सबको हाँक रहा हूं? क्योंकि अगर ओन करवा लिया तो फिर आपको किसी को खींचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को हाँकने की जरूरत नहीं है। They will own it. This means they will start walking on that. You have to just keep on inspiring them as they walk. Because चलते चलते जितना विशाल विजन होता है, जितना भयंकर विजन होता है, उतना हम लोग थक जाते हैं या हार सकते हैं, या फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। And that's where the leader comes and pumps us up, inspires us, tells us it's okay, that's the way it has to be. It's okay if you have failed. Come on, get up and again move towards the vision. ये लीडर का काम होता है। So this is the function of leadership. इस फंक्शन को निभाने के लिए लीडर जो है अपनी लीडरशिप की स्टाइल को यूज करता है, अपने स्टाइल को यूज करता है कि मैं कौन सी स्टाइल यूज करूं जिससे मैं ये अपने फंक्शन को निभा पाऊं। और हर एक की स्टाइल अलग होती है, हर एक लीडर का तरीका अलग होता है, लेकिन हर एक लीडर की जवाबदारी एक है, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर का फंक्शन एक है, लीडर के फंक्शन को निभाने के तरीके अलग अलग है। तो सबका स्टाइल अलग हो सकता है, और जिसकी जो स्टाइल, जो उसकी स्टाइल है, जो उसके अंदर से आती है, जो उसके अंदर की काबिलियत से आती है, वो स्टाइल से इस फंक्शन को वो निभा लेता है। सो आई जस्ट काइंड ऑफ डू अ recap for all of you, and keep on throwing your questions. If you have any questions you would like to ask me, maybe we will make it an interactive kind of a session there. Otherwise वो एक monologue हो जाएगा एक तरफ से कि that I'm speaking and you're listening there. So let's make it an interactive kind of a session. If you have any question on leadership, throw it up to me, and then let's see how far that question takes us. तो I'll just take you back to what I've shared so far. तो मैंने आपसे शेयर किया कि लीडरशिप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है
जो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गई है और उसके पास वीक लीडरशिप थी. इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज रीच्ड अ सर्टेन लेवल, इसका मतलब लीडरशिप बड़ी अच्छी थी, बड़ी पावरफुल थी. सेकंड, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा जवाबदारी है टू हैव ग्रेट लीडरशिप, बिकॉज वहां की जो लीडरशिप है, जो पोजीशन वाइज लीडरशिप है, जो वहां का लीडर है, वो रोज इंटरेक्ट करता है, उसका रोज का इंपैक्ट होता है अपनी टीम पे, तो उसका अच्छा होना बड़ा जरूरी है. उसका अगर वीक हो गया, वो अगर पुअर हो गया लीडरशिप में, तो फिर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज उसको सपोर्टिंग लीडर्स नहीं है, उसको कोई प्रोसेस का सपोर्ट नहीं है, उसको कोई बहुत बड़ा एक एक स्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं है, वो लीडर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस. तो इफ ही इज वीक और शी इज वीक, then the organization will not grow to the level which he or she should grow. So that's what is the importance of leadership. तो आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी आपकी स्ट्रैटेजी जबरदस्त सोची हुई हो, कितना भी आपके एग्जीक्यूशन के प्लान्स बने हुए हो, कितनी भी एडवांस्ड आपकी टेक्नोलॉजी हो, ये सब धरे की धरे रह जाएंगी अगर लीडरशिप कमजोर रही तो. ये है ताकत लीडरशिप. And we need not go any far. You see the countries around us, you see the neighbors we have with us. With due respect to them, I'm not belittling them, but ये हमारे सामने है ना कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास भी थे ना. सेम टाइम पे आजाद हुए ना सब लोग. वो रिसोर्सेज उनके पास भी थे, वो रिसोर्सेज हमारे पास भी थे, राइट. और जो फर्क पड़ा है, इट इज बिकॉज ऑफ लीडरशिप. कि उनकी लीडरशिप कैसी रही सालों साल, हमारी लीडरशिप कैसी रही. तो एक लीडर जो है, जितने भी आपके पास साधन है, रिसोर्सेज हैं, उसको मैक्सिमाइज करने की ताकत रखता है. और एक लीडरशिप ऐसी भी है, अगर अगर पुअर लीडरशिप रही, अगर डिस्ट्रक्टिव लीडरशिप रही, तो आपके सारे साधनों को डिस्ट्रॉय करने की ताकत भी रखता है. दैट्स द पावर ऑफ लीडरशिप. तो हम सबका पोटेंशियल है, हमारी टीम का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने की काबिलियत एक लीडर के अंदर होती है. So that's the importance of leadership. Then second, I shared with you this very concept कि leader जो है, ये leadership क्या है. तो leadership एक कला है, it's an art. ये कला क्या करवाती है? It makes people want to do those things which must be done. ये कला वो है जो एक लीडर जो है यूज करता है और अपने फॉलोअर्स के अंदर एक चाहत पैदा करता है उन कामों के लिए जो होने चाहिए. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से काम नहीं चलेगा. ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होने चाहिए उनसे काम चलेगा ना. तो जो काम होने चाहिए उसके प्रति चाहत क्रिएट करने की काबिलियत एक लीडर की होती है. कि अगर एक काम है जिसमें which has to be done over a period of time, और उसके लिए समय लग रहा है, लंबा समय लग रहा है, लेट नाइट्स लग रही हैं, वीकेंड्स लग रहे हैं, छुट्टियां भी लग रही हैं, वो काम मस्ट है, जरूरी है. तो एक लीडर की काबिलियत है, वो अपने फॉलोअर्स के अंदर वो चाहत पैदा करता है कि यार ये काम तो करो. That is what leadership is all about, right? Then ऐसे अब लीडरशिप समझ में आ गया, तो लीडरशिप का काम क्या है. तो इसका मेन फंक्शन जो है लीडरशिप का, ये जो है एक बहुत जबरदस्त विजन बनाने की इसकी जिम्मेदारी है. और वो विजन, इट्स नॉट अबाउट बिगनेस कि बहुत बड़ा विजन, ऐसा नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कंपेलिंग कि हमने जो नहीं किया उससे हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, हमने जो नहीं किया उससे अलग हम हटके करने वाले हैं. सो कंपेलिंग विजन जो होता है, ये लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है. कंपेलिंग विजन जो होता है, हमें एक फॉरवर्ड मोमेंटम लाने की ताकत रखता है. लेकिन कंपेलिंग विजन जो होता है, हमसे जबरदस्त डिमांड भी करता है दैट वी डू समथिंग व्हिच वी हैव नेवर डन बिफोर, बिकॉज़ वी वांट समथिंग व्हिच वी हैव नेवर गॉट बिफोर. जब हमें वो चाहिए जो हमें कभी नहीं मिला, तो शायद हमें वो करना पड़ेगा जो हमने कभी नहीं किया. सिंपल है, नो रॉकेट साइंस. That if you want something which you have never got before, then we ought to do what we have never done before. तो इसलिए टीम को हिलाना पड़ता है, टीम को साथ लेके चलना पड़ता है. और इसलिए लीडर का काम है कि लीडर काइंड ऑफ मेक्स द टीम ओन दैट विजन. और वो कहता है कि हमारा साझा विजन है, हम सबका मिलकर विजन है. And that's how the team and the leader, they walk together. It's not that you follow me. It's all about we walking together, and that can only happen if the vision is owned. ये हमारा विजन है. And उस विजन को पूरा करने के लिए लीडर यूजेस, उस विजन को रियलिटी में लाने के लिए, टीम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, लीडर यूजेस हिज ओन लीडरशिप स्टाइल्स, व्हिच इज डिफरेंट. एवरी लीडर विल हैव अ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल. तो यहां तक हम अभी पहुंचे. How do we handle downline to increase consistent, productive work?
प्रोडक्टिविटी निकालना, Ganesh, is the one of the essential tasks of leadership. कि how do you make your team productive? देखो, हर एक के अंदर एक पोटेंशियल है, जैसे मैंने कहा, हर एक के अंदर एक काबिलियत है, हर एक के अंदर एक पॉसिबिलिटी है. तो लीडर को ये समझना है कि is my style bringing out the best? Now, for that you have to understand who that person is. अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, since your question has come up, you got to understand this. I have always given this example in all my workshops. कि आप कभी देखो ना सर्कस को, तो सर्कस में आप देखोगे there's a ring master, right? वो रिंग के अंदर होता है और he's a ring master, और उसके पास काफी जानवर होते हैं. So there are lions and there are tigers, there are elephants, there are bears, there are donkeys, there are horses, there are dogs, there are cats. ये अलग अलग तरह के उसका जानवर है, और उसको उन जानवरों के साथ डील करना है और उनसे परफॉर्म करवाना है. Now look at the complexity of the ring master's job. कि वो तो लीडर है, और वो लीडर भी किसका है? वो इंसानों का लीडर नहीं है, वो लीडर है उन जानवरों का. और ये जानवर भी कैसे हैं? सब अलग अलग हैं. ऐसे भी नहीं कि एक ही वैरायटी के जानवर है कि सब शेर हैं तो फिर ठीक है, सब चलेगा. लेकिन कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई गैंडा है, कोई घोड़ा है, अलग अलग जानवर है. तो वो क्या करता है? उसको अकल है रिंग मास्टर को, कि रिंग मास्टर को मालूम है कि ये मेरे सामने जो है ये शेर है, एंड ही नोज हाउ टू डील विद अ लायन. तो वो चाबुक लेता है और चाबुक लेके वो उस शेर से डील करता है. उस शेर को वो हड्डी नहीं दिखाता है, वो शेर को कोई गाजर नहीं दिखाता है, वो शेर को दूध नहीं पिलाता है, राइट? वो शेर को गन्ना नहीं खिलाता है, वो शेर को चाबुक दिखाता है, चाबुक मारता है. और शेर जो है, लाइक अ कैट, इट सिट्स ऑन अ स्मॉल स्टूल एंड एवरीबॉडी क्लैप्स, because that leader knows whom I'm dealing with, and he gets the performance out of that lion. Similarly, he knows I got an elephant in front. अबे एलिफेंट को मैं चाबुक मारूंगा तो काम नहीं चलेगा, उसको मुझे गन्ना खिलाना पड़ेगा, मे बी उसको I have to have a different kind of treatment with this elephant, तब वो काम करेगा जो करेगा. Similarly, he knows I got a donkey with me, so for a donkey I need to show him a carrot. I need to give him a carrot for him to move. He also knows I got a cat. ये बिल्ली है, बिल्ली को दूध पिलाऊंगा या बिल्ली को जिस तरह से ट्रीटमेंट करूंगा तब बिल्ली काम करेगी. वो बिल्ली को चाबुक नहीं मारेगा. अगर बिल्ली को चाबुक मारा तो बिल्ली तो वहीं उसका गेम ओवर हो जाएगा ना. So I want you to understand, do you know your people? और जैसे मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, तो आपके सामने अलग अलग जानवर आ रहे होंगे आपकी आंखों के सामने. तो you got to understand who I'm dealing with, and based on that person you use your style of leadership. प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है हमारे सामने सब एक ही तरह के जानवर हैं, और फिर हम क्या करते हैं? हम एक ही तरह की स्टाइल यूज करते हैं. तो अगर हमें लगता है सब शेर हैं और हमने चाबुक लिया और मारा, तो जो शेर टाइप के जानवर हैं वो उस चाबुक से डर के वो परफॉर्म करते हैं. तो हमें क्या लगता है? देखो हमारी स्टाइल काम हो गई, काम पे आ गई, आवर स्टाइल वर्कड. लेकिन उसमें दो चार जो बिल्ली होती हैं, दो चार जो अलग जानवर होते हैं, कोई बिदक के भाग जाता है, कोई हम पे अटैक कर देता है, कोई मर जाता है, तो हम क्या कहते हैं? कमजोर है, इनको समझता नहीं है, देखो ये कैसे काम कर रहे हैं और ये काम नहीं कर रहे. नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट उसकी पर्सनालिटी अलग है, इसकी पर्सनालिटी अलग है. सो फॉर मी टू डील एज अ लीडर विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, आई नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स. So, Naresh, मैं आपको सजेस्ट करूंगा that you understand different styles of leadership and you also understand which style to use on which person. एक मेरा प्रोग्राम होता है, I wish I could share this with you, but there's a 2-day program of mine on leadership, जो मैं उस 2 दिन में मैं सिर्फ यही बात करता हूं कि आप अपनी स्टाइल समझिए और आप समझिए कि कौन सी स्टाइल जो है कौन से इंसान पे इस्तेमाल होगी. And if you can use that, the right style on the right person, you will definitely get productivity out of those people. ये बात तो पक्की है. So कभी होगा वो बैच मेरा, I don't know when it will happen. It's a part of my entrepreneur program. होगा तो मैं I'll keep you all posted and maybe you can come for that. But for the first part which I was talking about, the vision, कि vision होना चाहिए एक लीडर के पास. I'm just taking a vision workshop. Just wanted to share this with you. It's happening on 10th and 11th. It's a beautiful 2-day program on how do you create a very compelling vision for your organization. तो वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जो मेरा हो रहा है. If you're an entrepreneur and if you feel that you should be a part of that program, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए. My team will be in touch with you. But it's a beautiful program which is a must for entrepreneurs, that's for sure.
Is my voice okay now? I don't know. Hello. I think I got a feedback about the volume. Is it okay? Okay. Chaliye. Great. Now I just share with you a few qualities of a leader, and so we understood what leadership is. We understood that the function of a leader. We understood the different styles of a leader. Now just let me share with you a few qualities. Now they're not the best qualities, but I feel when I think about them, I feel that ये तो होनी ही चाहिए. You cannot miss out on these qualities. You cannot ignore or avoid these qualities. So number one quality which I have seen and I've admired in leaders is the quality of genuinity. How genuine they are makes a huge difference on their impact on their followers. आप देखो ना कि हम बात कर रहे हैं कि लोगों ने हमें फॉलो करना चाहिए एंड फॉलो किस लिए करना चाहिए फॉर समथिंग बिग देयर इज अ बिग कॉज वी टॉकिंग अबाउट द कॉज इज अ विजन वी वांट देम टू अकम्प्लिश विद अस. तो जब कोई हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करे या फिर ही गोज बियॉन्ड हिज नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग, दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम पीपल अराउंड अस. तो फिर वो इंसान जो है वो क्वेश्चन करता है कि यार ये मेरे से डिमांड कर रहे हैं something which is difficult for me to do. Why should I do it? और उस why में जब वो पूछता है why should I do this? Why should I follow this leader? ऐसा पाया गया रिसर्च में that the topmost quality which makes this person settle down, which makes this follower feel relaxed and okay, is the quality of genuinity in the leader. So if the follower sees that my leader is a genuine guy, he is absolute genuine guy, he's an authentic guy, तो फिर वो कहता है यार ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है. And that's where the trust factor comes in. And especially when it comes to something which is difficult for the follower to hold on to, वहां पर वो लीडर की जेन्युइनिटी देखना चाहता है. जब ऑर्गेनाइजेशन में मैं बोलता हूं कि हैव अ वैल्यू सिस्टम, वर्क इन अ सर्टेन एथिकल वे, वर्क इन अ सर्टेन वे व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज वैल्यू एडिशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. तो जब लीडर इसमें सोचता है और कुछ वैल्यूज के ऊपर चलने की बात करता है, तो वो उसकी टीम को भी उस वैल्यूज पर चलना पड़ता है. And that's where the team questions. The team says, why should I walk on these values? Why should I live as per these values? Is my boss living? Is my boss genuine about these values? ये मेरा जो लीडर है, जो मेरा बॉस है, क्या ये वाकई में ये जीता है इन वैल्यूज को जो मेरे से जीने को लगाने को कह रहा है, या फिर सिर्फ पोस्टर के लिए, या फिर सिर्फ वेबसाइट के लिए, या फिर सिर्फ किसी को दिखाने के लिए ये जो है इसने ये वैल्यूज को प्रिंट करा हुआ है, लिखा हुआ है. ऐसा है क्या? ऐसे में वो जो है वो देखता है जेन्युइनिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द लीडर. वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर यू टॉक अबाउट एनी अदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, आई थिंक द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज दैट यू गॉट टू बी जेन्युइन. अगर आप जेन्युइन हैं तो आपका दर्द भी वो समझेंगे. अगर आप जेन्युइन हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन को भी वो हैंडल करेंगे. अगर आप जेन्युइन है ना तो फिर आपके जो विजन आपने सेट किया है उस पर विश्वास करेंगे. अगर आप जेन्युइन नहीं उनकी नजरों में उतरे, आप कुछ भी कर लीजिए, दे विल जस्ट वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, दे विल नॉट गो बियॉन्ड. ये you're saying much better for my voice, or you're saying much better for what I've spoken? A lot of you have said yes, we can. अच्छा, this is about the volume which is there. आप लोग हो मेरे साथ? So ensure that you are genuine. अभी genuinity कैसे लानी है, मैं इसमें क्या बात करूंगा आपसे. I think you're genuine or you're not genuine. और लोगों की बात करने के तरीके से समझता है. You can fool somebody for some time, right? You can fool a lot of people for some time, but you can't fool people for a long period of time. In fact, you can't even fool one person all the time. कभी ना कभी तो उसको समझ में आ जाएगा ना कि आप कैसे हो. So you got to be genuine about it. And especially उन चीजों के लिए जो आप चाहते हो कि वो करें, you got to be genuine about it. Second,
starts from you being genuine. जब फॉलोअर की नजरों में ये लगेगा कि यार ये तो लीडर जो है ना, ये तो यार जेन्युइन नहीं है, ये तो आई डोंट थिंक आई कैन ट्रस्ट दिस गाय, आई डोंट थिंक ही इज टेलिंग द ट्रूथ, आई डोंट थिंक ही लिव्स बाय व्हाट ही सेज, अगर वहां जेन्युइनिटी खत्म होगी ना, फिर तो आगे की बात करना ही बेकार है. So you got to be genuine to start with. Second thing which I've seen in leaders, now there are n number of qualities. I'm just going to speak about 2-3 today. अभी time भी overshoot कर लिया मैंने by a few minutes, but listen to the second quality. Leaders who make an impact are leaders who are decisive. I'll again say, leaders who make an impact are the ones who are decisive. They don't stall things. बगू देखते हैं, सोचते हैं, कभी तो करेंगे, हाँ करेंगे. ये this is not what takes organizations forward. Organizations move forward because of a decision. Now, whether the decision is right or wrong, that's a different thing. Whether that is a good decision or a bad decision, that's a different thing. But I feel even a bad decision is better than no decision. ये जो indecisiveness की situation है ना, this is much more harmful than a bad decision. आप अपनी लाइफ में देख लो, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठना है, ये इनडिसाइसिवनेस, आइदर यू डिसाइड कि यार मैं अभी सोऊंगा, मैं नहीं उठूंगा, ठीक है, ये हमसे चुरा लेता है, हमसे हमारी ग्रोथ को. इनडिसाइसिवनेस, एंड आई सी सो मेनी पीपल सफरिंग फ्रॉम इनडिसाइसिवनेस. व्हेन आई वाज इन सेल्स, active sales, I would always say to my prospects after I met them, spoken to them about my offerings and things like that, I would always say, for your sake, not for me, for my sake only, but for your sake, मेरा तो होगा क्लैरिटी से बेनिफिट, बट आपके बेनिफिट के लिए आप डिसीजन लो. You want my product, my service, or you don't want, either ways it's okay, but take a call. Don't stall things. तो स्टॉलिंग में क्या होगा कि आप डिसीजन नहीं लोगे तो एज अ सेल्स पर्सन जो है, कोई ना कोई आपको फॉलोअप करेगा, तो आप अपना फोन उठाओगे, नहीं उठाओगे, उसका कॉल अवॉइड करोगे, बोलोगे कल करेंगे, परसों करेंगे. टेक अ कॉल कि नहीं चाहिए प्रोडक्ट, टेक अ कॉल कि चाहिए. बट ये इनडिसाइसिवनेस की सिचुएशन जो है, ये बहुत कुछ हमसे चुरा लेती है. एंड आई ऑलवेज से दैट ऑर्गेनाइजेशंस दे मूव अहेड purely on the decisions taken by the organization. So you got to be decisive. And I cannot give a better example than our own MS Dhoni. How we love him and we admire him not because of only his batting and his ability to play cricket. We admire him because of his decisions. वो वर्ल्ड कप में याद है उसने कैसे लास्ट ओवर जोगिंदर सिंह को दिया, and who would have thought? But look at the decision he took. अब वो डिसीजन उल्टा भी पड़ सकता था, और पड़े होंगे कितने डिसीजन धोनी के उल्टे, लेकिन वो डिसीजन लिया ना. और आप अपनी लाइफ में देखो, अगर आप मुझे सुन रहे हो, ऑल लीडर्स, ऑल एंटरप्रेन्योर्स हु आर लिसनिंग टू मी, अगर आपकी लाइफ में कहीं ग्रोथ आपसे कहीं बाईपास होकर निकल गई, तो उसका सबसे बड़ा कारण था यू डिड नॉट टेक अ डिसीजन, यू वर इनडिसाइसिव, और उस इनडिसाइसिवनेस में आपकी गाड़ी छूट गई. तो decisions are not about right or wrong decisions. Decisions are all about decisions. एक छोटा सा वो करना, टेस्ट करना आप, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने 8-10 लोगों को लेके बैठना और उनको एक सिचुएशन देना. सिचुएशन कैन बी एनी सिचुएशन इन रिलेशन टू योर बिजनेस, और उनसे कहना कि हमें एक डिसीजन पे आना, क्या करना चाहिए. For example, it can be a situation like, should we start another factory in a new city? ये डिसीजन, ये आपने उनको सिचुएशन दिया और आपने कहा जो भी फैक्ट्स चाहिए मैं आपको फैक्ट्स देता हूं, ये डिटेल्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, सब ले लो, चलो मुझे बताओ. आप देखोगे कि इनवेरिएबली 50% पीपल विल से हाँ हमें शुरू करना चाहिए, 50% पीपल विल से हमें नहीं करना चाहिए. That's the case with everything. कि आप जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स ले आओ, तो उसके साथ ये है ही पॉसिबिलिटी कि वो 50% चीज सही हो सकती है, 50% चीज गलत हो सकती है, 50% हाँ हो सकती है, 50% ना हो सकती है. हमें करना क्या है? हमें डिसीजन लेके एक के साथ जाना है. दैट्स व्हाट अ डिसीजन इज.
एंड दैट्स वेयर वी काइंड ऑफ स्टॉप आवरसेल्व्स. हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, बिकॉज हम कहते हैं ना ना ना, 10 के 10 लोग पहले हाँ करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे. ऐसा कहीं होता है क्या? The higher we grow in organizations, the more we have to be decisive. Am I right or not? The bigger the organization becomes, the more is the importance of the decisions we take. और सुनने को मिलता है, जितने बड़े डिसीजन होंगे उतना सुनने को मिलेगा अगर वो सही नहीं गया, और अगर सही गया तो फिर उतनी तारीफ भी तो होती है. लेकिन हम ना वो सुनने के लिए कर रहे हैं डिसीजंस, ना हम तारीफ के लिए कर रहे हैं. हम कर रहे हैं बिकॉज हमें लगता है एज लीडर्स वी गॉट टू बी डिसाइसिव. So second quality which I really admire in leaders, and I feel that ये कूट कूट के भरी होनी चाहिए, is the quality of decisiveness or decisions. हाँ जी, connecting. So and then you see around, अगर मैं MS धोनी की बात करूं, the ability to say no. He took a decision that senior players को नहीं खिलाएंगे. And we want to prepare a young team. कितना मुश्किल रहा होगा to tell. And he comes from a small city यार, छोटे शहर से आया. He didn't come from Mumbai or Calcutta or Bangalore and big cities. छोटे शहर से आया, from a very humble background. We all know, we have seen the movie, we know about MS Dhoni. From there coming and becoming the captain of the Indian cricket team and having the guts and the balls to say, hello bhai, we will not make this guy play and he has been playing 20 years cricket for India. हम इसको नहीं खिलाना चाहिए, हमें इसको नहीं खिलाना चाहिए. ये डिसीजन लेने की ताकत क्या लगा होगा. हम तो यहाँ सुन के स्टोरी ऐसे बोल देते हैं, बट इमेजिन ही वाज इन द रूम विद ऑल द सेलेक्टर्स एंड ही इज टेलिंग दोस गाइज, hey, let's not have these guys on board. Decisive decisions, this ability to be decisive, this is what is the power of decisions. तो आप अपनी लाइफ में चेक करो कि आप कहां पर डिसीजंस में कमजोर पड़ रहे हो यार. आई थिंक समवेयर we are not able to decide and we are stalling decisions. हाँ या ना, आगे बढ़ो यार. ना करोगे तब भी आगे बढ़ोगे, हाँ करोगे तब भी आगे बढ़ोगे. ये रोक के ना, ये किसी चीज को स्टॉल करके किसी की जिंदगी अच्छी नहीं हुई. किसी की जिंदगी. मूव अहेड. either get the thing out of your mind or get it done. Take a decision. Third quality which I really admire. First was genuinity. Second was the ability to take decisions. And the third quality is the quality of being able to have a personal touch. अब ये इतनी सिंपल क्वालिटी है ना. अभी ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी में क्या बताऊं मैं, लेकिन इतनी बढ़िया है ना कि बिकॉज जितना आपसे गहराई में जाओगे उतना समझ में आता है कि people love you or people would love you because they see you as a genuine guy. People will not love you or not like you because somewhere उनको लगेगा यार ये आदमी टोपी लगा रहा है. People will or your organization will benefit from you because you were decisive. Your team will look up to you. यार this guy doesn't hold on to decisions. ये इनके पास जाओ, ये हार या पार कर देती. ये तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसी बातें होती हैं. ऑर्गेनाइजेशन में बातें क्या होती हैं, यार कुछ भी कर लो, ये लोग ना डिसीजन नहीं लेते, हमने पहले भी दिया है इनको सजेशन, हमने पहले भी फीडबैक दिया है, नथिंग हैपेंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ऐसी बातें अगर होने लग जाए ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब क्या है कि समवेयर वी हैव काइंड ऑफ got into the habit of stalling things. And the third beautiful habit which leaders have is the ability to maintain a personal touch. तो बहुत से लीडर्स जो है ना, उन्होंने जब जैसे हल्के से लीडरशिप पोजीशन में आए तो उन्होंने लोगों से संबंध बंद कर दिए, लोगों से पर्सनल टच बंद कर दिया. एंड पर्सनल टच कैन बी मेंटेन इन सो मेनी वेज. कि आप ऑफिस में हो, अपना काम तो कर रहे हो, वंस इन अ व्हाइल गो एंड टेक अ वॉक. टेक अ वॉक. डोंट कॉल पीपल. वो आजकल बड़ा चल रहा है ये ट्रेंड, कॉफी विद सीईओ, कॉफी विद एमडी. वो जैसे कॉफी विद वो चल रहा है, फिल्म स्टार्स ने चालू किया कॉफी विद करण एंड थिंग्स लाइक दैट. तो अभी कॉफी विद एमडी. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दैट, बट उससे पर्सनल टच नहीं बनता बिकॉज आपने उसको बुला लिया. राइट. पर्सनल टच का बनता है व्हेन यू वॉक अराउंड इन देयर स्पेस. आप उसके स्पेस में गए, आप उसके घर में गए, आप उसके इवेंट में गए. दैट्स योर पर्सनल टच. तो वो जहां वो काम कर रहा है ना, उसके शॉप फ्लोर में गए
और वहां जाके उससे बात करी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. यू डोंट टॉक अबाउट वर्क कि कितना माल बनाया, कितना पीस बनाया. You just are there with him and you see him in action and you find something great about him. And that's what you talk about. So you maintain a personal touch. You ask him how his children are. You ask him how's life going on. तो वो एक पर्सनल टच होता है तो बड़ा इम्पैक्ट आता है. You can just write, and another way of being of maintaining a personal touch is you write something. It will take 20-30 seconds to write something good about him and you send it across to him. Nothing works like writing something beautiful to somebody. All those years, last 25 years of my life, मैंने पर्सनल टच तो मैं सबसे जितना हो सकता है मैं सबसे मेंटेन करता हूँ. आई नेवर टेक द सरनेम. मुझे तो बहुत से लोगों के सरनेम याद नहीं है. मैं सबके फर्स्ट नेम लेके बात करता हूँ बिकॉज आई वुड लव टू कनेक्ट विद देम, नॉट देयर फैमिली, कि उनका बाप दादा का नाम क्या है, उनका नाम क्या है. सो आई ऑलवेज टेक द फर्स्ट नेम. I always, when we would have ceremonies and we would have functions or events, by default, आदत ही थी मेरी. I would go around, have one, morsel of food from somebody. किसी की प्लेट से कुछ खा लिया, किसी की प्लेट से कुछ खा लिया. ऐसे चलते फिरते मैं खाते रहता हूँ किसी की प्लेट से. It's a personal touch which you bring in. The awards होते थे. I don't know, some of you watching me and if you have been through my programs, you would agree with this कि जब भी awards होते हैं मेरे जहाँ पर होते हैं, so we have a trophy which we give. बट हर ट्रॉफी के साथ मेरा एक हैंड रिटन नोट होता है, हर ट्रॉफी के साथ. एंड आई राइट व्हाट आई हैव नोटिस इन दैट पर्सन द लास्ट मेनी मंथ्स और डेज द पर्सन वाज विद मी. आई राइट अ पर्सनल नोट. यस, इट टेक्स एफर्ट टू राइट दैट पर्सनल नोट. और कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं जब जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में तो कहते हैं सर ये ट्रॉफी तो है लेकिन आपका जो ये पर्सनल नोट है वो उसको फ्रेम करा के रखा हुआ है लोगों ने, वो पर्सनल नोट को अपने ड्रॉर में रखा हुआ है. दैट्स हाउ यू टच देम. So you have to go a bit beyond. What bigger example and a better example I can give to you than our Prime Minister Modi ji? कितने एथलीट्स को फोन करते हैं वो. Somebody wins a medal. अभी मैं पढ़ रहा था उनके बारे में कि पीवी सिंधु को उन्होंने ऐसी वादा किया था कि अरे तुम मेडल लेके आओ, I'll have आइसक्रीम विद यू. तो उन्होंने मेडल जब वो लेके आई तो उसके बाद उन्होंने आइसक्रीम खाई उनके साथ. He met so many other athletes and players, but every time a medal would be won or a team would win, he would call them up. Personal touch. Is he free? उनको कुछ काम नहीं लाइफ में क्या? अरे 18-20 घंटे काम करते हैं. One meeting after another, 36 hours at a stretch without sleep he would work. उसके बाद भी वो फोन करते. There's a beautiful story about a couple by the name of Bharat and Vibha के नाम से ऐसा कुछ स्टोरी है. And this wonderful couple was expecting a child, and they just wrote a letter to the PMO that we are expecting a child, and just wanted to convey to the Prime Minister that हमारी एक लड़की है, and we are looking forward to a lot of things happening in the country for the daughters of the country. And ऐसा उन्होंने लेटर लिखा और हम चाहते हैं कि मोदी जी तक हमारा मैसेज पहुंचे कि बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम चल रहा है. And we are expecting another child coming in 1 month 2 months from now. तो ऐसा उन्होंने मैसेज लिखा. And one day Bharat got a call from the PMO, and before he could understand, there was Modi ji on the line, and Modi ji बात कर रहे हैं भरत से कि how are things, and he says I've been blessed with a daughter. And मोदी जी ने उनके डॉटर का नाम भी दिया कि विभा और भरत तुम दोनों हो तो तुम्हारी डॉटर का नाम वैभवी हो जाए. And that story, I read the story and I said wow, कि क्या तरह का कनेक्ट है ये. तो उनके पास तो 100-150 करोड़ की आबादी है, तुम्हारे पास तो 15-20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं. बिल्ड अ कनेक्ट, बिल्ड अ पर्सनल टच, एंड ट्रस्ट मी, फिर देखो आप कि आपकी लीडरशिप का क्या रंग, क्या रूप खिलेगा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई कैन ऐड ऑन टू दिस वेरी एस्पेक्ट, बट एज ऑफ नाउ होल्ड ऑन टू दीज 3 क्वालिटीज. द फर्स्ट इज बी जेन्युइन, right? Second is ensure you take decisions, don't stall things. Take decisions, take decisions, take decisions. आपके सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूं बी रैश. आई एम जस्ट सेइंग, जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए ना तो अभी तो कॉल ले लो ना. नहीं करेंगे चलेगा, करेंगे चलेगा, लेकिन ये बीच की सिचुएशन नहीं चलेगी. टेक अ कॉल, yes or no, but take a call. And third is build a personal touch. Oh, be it personal, professional life. Absolutely.
whether it be a personal, professional life, a state of indecisiveness will kill your life inside you. That is for sure. Hmm? Anji, I got my vada today. Great. Hmm? So आज I've overshot time by 15-20 minutes, but I think it was worth it. Hmm? कैसा रहा आज का YouTube live on business? I'll be back next week with another subject, another. Let's see if I get time to speak to you on some other subject, or maybe I'll build on the leadership side more for all of you. Hmm? But now do implement and make it a part of your life in whatever way. जहाँ जहाँ आप अटके हो, take a call, take it ahead. Hmm? And do share our channel. Do subscribe to the channel अगर आपने subscribe नहीं किया है. And do share our channel. Just wanted to reach to as many people as possible. जितने लोगों तक पहुंच जाए उतना बढ़िया. We kind of I'm an old school guy. To be honest and frank, I'm an old school guy where I love to meet people personally, individually. I'm a people's person. तो ये जो digital side है ना, मेरा थोड़ा कमजोर side है. So बहुत time लगता है for me to go into this mode of being digital. Love to meet people. Tomorrow I'm going and meeting a group of entrepreneurs early in the morning, and they have a great initiative lined up for me. So that's what I love to do. So, but ये भी जरूरी है that we are online and we are reaching out to people. So do spread the word. अगर आपको benefit हुआ है, आप Good to see you, Navnath here. Namdeg, lovely to see all of you. Hemant, wonderful. RM, simple and impactful as always. Thank you so much, Ratnali. God bless you. Chalo, love you, Arvinder. Preeti, great. God bless you all, and would see you next week. We will let you know the date. I think it will be a Wednesday. I should be back from a vision program on Tuesday, so Wednesday evening I'll be there again one more time live with you. So God bless you and love you all. Stay inspired and stay charged and take some great decisions in life.